Hello दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स रेलेवेंट फॉर 6 to 8 मई 2023। ठीक है जी, पंजाब इजीएस्ट जो भी अपने करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स च, मेंस च, इंटरव्यूज च पूछे जा सकते हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दीज करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू help you in your preparation. Also, I want to inform you that the test series for specifically meant for Punjab PCS is already going on. First test कल हो गया सी, people have performed, students have performed very well in that. Some are learning from that. If you also want to have that experience and to test yourself in a dedicated test series for Punjab PCS in a scheduled manner, then check the description box for the link and enroll yourself for the test series. Right, so let's move forward and see the topics that we are going to discuss today. ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਦਰ ਇਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਔਰ ਮੇਨਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਟੌਪਿਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्ट 'ਚ, ਇसीलिए ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ क्या है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। then cyber attack, cyber security अपने GS3 ਦਾ ਪਾਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Right, then atmospheric rivers caused 70% of India's floods between 1985 to 2020। ठीक है जी, उन्हें atmospheric rivers क्या है, बहुत ही important। ठीक है, ते prelims च भी question आ सकता है and mains ते भी we will see that what are atmospheric rivers and how they are causing flooding, majority of the flooding that India has experienced। Right, and finally Maldives नाल इंडिया ने कोस्ट गार्ड दा हार्बर प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ launch ਕੀਤਾ है। वो where is Maldives on map, why is it significant for India? इंडिया ने ਕਿਹੜੇ प्रोजेक्ट्स Maldives ਨਾਲ ਅੱਜ तक launch ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। India Maldives relations are very important, can be asked in your IR part। right, already ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ question PPSC ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ and श्रीलंका ਤੇ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ इसलिए IR ਦੇ ਪਾਰਟ ਲਈ obviously India Maldives relations are important, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ with as many people as you can our channel so that we are able to provide you quality content to every aspirant। right, first topic ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ। right, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ is nothing but it is a day that celebrates the birth of Gautam Buddha। ਜਿੱਦਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਵੇਸਕ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਸਕ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ। ਤਾਂ ਵੇਸਕ ਡੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਡੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 1999 ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ UN ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਕ ਡੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼, ਐਕਨੋਲੇਜ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਫॉर दैट पर्सपेक्टिव ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਸਕ ਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 important events of Buddha's life happened on this day, that is why ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਡ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਨ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਧਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ 3 ਕਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, that is ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਬਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਬੋਧੀ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਸੇਮ ਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੇਸਕ ਡੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਡ ਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਬੁੱਧਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਨਾਈਟ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਵੇਸਕ ਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਫਰਸਟ ਸਚ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਗ ਜੋ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਇਟ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ 4 ਕਾਉਂਸਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, महायान, हीनयान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला ये 2 सैक्ट्स ਜਿਹੜੇ ओरिजिनेट ਹੋਏ ਸੀ। हीनयान ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਦਰ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਟਸ ਫਲਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ चरण कमल हो गए, जिमें इस तरीके नाल they pray the symbols related to Buddha, they do not treat Buddha as a god, right, rather as a guide। जद कि महायान च प्रॉपरली बुद्धा ਨੂੰ ਗੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਧਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾयान ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਈਡਲਸ ਆਫ ਬੁੱਧਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀਨयान ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ अर्लीयर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म सी, जिस च आइडलिज्म, रिचुअलिज्म ये सब इन्वॉल्व नहीं सी, राइट। उस तो बाद वज्रयान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है बुद्धिज्म का, ये तांत्रिक बुद्धिज्म नाल रिलेटेड है, राइट। जदों तांत्रिक प्रैक्टिसेस, मैजिकल पावर्स च बिलीव किया जान लग गया और ये सोचा जाता सी कि बुद्धा भी तांत्रिक पावर्स नाल लैस सी, तुसी कह सकते हो, राइट। उस तो बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 बेसिक बुक्स ਜਿਹੜੀਆਂ बुद्धा ਦੀ लाइफ नाल रिलेटेड है, दीज आर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, एंड ये तो इलावा भी काफ़ी टेक्स्ट ने। अगर तुसी बेसिक बुक्स पढ़े ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁక్స్ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, एंशिएंट मिडीवल ਲਈ ਤੁਸੀਂ क्या करना, आर्ट एंड कल्चर ਲਈ क्या करना है, ये सब पोर्शन उस च कवर हो जाएगा। सो दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्नी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ NCERTs ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, that will also be important for your examination, right। let's move to the second topic, cyber attacks। 2 important articles आए ने cyber attack नाल ही related, right। सब तो पहला आर्टिकल ਤਾਂ क्या है, एक रिपोर्ट चेक पॉइंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, showing the increase in the cyber attacks that are happening globally as well as within India on various organizations, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि अगर इंडिया का तुसी देखो 2022 नाल अगर कंपेयर करो, 2023 दे विच 18% इंक्रीज होया है साइबर अटैक्स विच, ठीक है जी। 1 साल दे विच 18% इंक्रीज होया साइबर अटैक विच, राइट। एंड अगर तुसी ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखो तो मोर देन 2000 वीकली साइबर अटैक्स होंगे है हर ऑर्गेनाइजेशन ते, ठीक है। तुसी अगर वड्डी ऑर्गेनाइजेशंस नूं इमेजिन करो तो कहने का मतलब ये है कि हर दिन ये कोशिश हो रही है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल इंपैक्ट किया जाए, उन्हों का डाटा चुराया जाए, उन्हों का कस्टमर डाटा चुराया जाए, या फिर उन्हों के डाटा नूं लॉक कर दिता जाए ताकि बाद च तुसी उन्हों तो पैसे मंग सको। साइबर अटैकर्स डिफरेंट वेज नाल अटैक करते हैं विद डिफरेंट मोटिव्स, डिफरेंट इंटेंशंस, ठीक है। कोई पैसा कमान लई, पैसा हड़पन लई, कहने का मतलब कोई स्टेट नाल स्पॉन्सर्ड हुंदे ऐसे आपदी कंट्री दी सिक्योरिटी लई, तां वो वेरीअस रीजनस करके जिहड़े साइबर अटैक्स जिहड़े वधदे जा रहे ने। एंड दिस इज अ रिपोर्ट, तुसीं इहनूं लिख के रख सकदे हो कि अ लेटेस्ट रिपोर्ट बाय चेक पॉइंट पॉइंटेड आउट दैट द साइबर अटैक्स ऑन इंडिया सिंस 2022 हैव इंक्रीज्ड बाय 18%, राइट। अगर तुसी ग्लोबली देखना होवे तो ग्लोबली भी वी हैव सीन द इंक्रीज इन साइबर अटैक्स, ग्लोबली दिस इंक्रीजेस 15%, राइट। तो ये डाटा जिहड़ा तुसी आंसर्स लिखण वेले यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव टू शो द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सानू साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करन दी क्यों जरूरत है, दिस डाटा शोज दैट वी आर सो मच वल्नरेबल। साडे ते साइबर अटैक्स जिहड़े है साडी कंपनीज ते साडी गवर्नमेंट दी डाटा ते डे बाय डे दे आर इंक्रीजिंग, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव साइबर सिक्योरिटी बैकअप। साडे कोल जी एंटी वायरसेस जे इक्विपमेंट्स होने चाहिए है that can help us fight all kind of cyber security threats,
ठीक है। इसीलिए आप कुछ दिन पहला डिस्कस भी किया सी, आर्मी ने भी स्पेशल साइबर विंग जिहड़ा है वो लॉन्च कर दिता है, बिकॉज साइबर इज द न्यू इमर्जिंग एरिया ऑफ वॉरफेयर इवन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, डायरैक्टली हुण असी फील्ड ते लड़ते नहीं है, एयर के थ्रू नहीं लड़ते हैं, बहुत रेयरली देखा जाता है, बट साइबर इज एन एरिया जिथे तुसी लुक के दूसरी कंट्री ते वॉर कर सकते हो। यू डोंट इवन गेट टू नो कि किधरों आ रहा है अटैक, कई बार आप कह दें रोग एलिमेंट्स कर रहे ने। ठीक है, तो साइबर जिहड़ा है न्यू अनएक्सप्लोर्ड फील्ड बनता जा रहा है, राइट। एंड दिस डाटा आल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, उस यूज कर सकते हो, इन्हें लिख के रखो साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक के अंडर, यू कैन यूज इट, राइट। सेकंड आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी नाल रिलेटेड क्या है, एक नया रैंसम वायर आया है, रैंसम वायरस आया है जिसका नाम है रॉयल। ठीक है, रॉयल नाम लिख के भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, रैंसमवेयर है, यू नो वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, कुछ भी पूछ सकते हैं तो प्रीलिम्स विच ते मेन्स च तुसी इहदा नाम यूज कर सकते हो व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो रॉयल क्या है, एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम का अगर तुहानू मतलब पता है, राइट, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रीलिम्स पीपीएससी का एग्जाम, इंग्लिश से पूछे जाते हैं, नॉट जस्ट प्रीलिम्स मेन्स लिए भी। रैंसम क्या होता है तुसी खुद दसो, जिवें किसी नू अगर हॉस्टेज रख लिया जाता है तो उहदे बदले जिहड़ी रकम मंगी जाती है उन्होंने आप रैंसम कहने हैं। ठीक है, समझ लो तुहाडा बच्चा किडनैप हो गया है, देन दे विल आस्क यू कि इन्ना 1 करोड़ रुपया दो, देन द चाइल्ड विल बी रिटर्न्ड, दैट इज रैंसम, राइट। तो इत्थे भी रैंसमवेयर च क्या हुंदा है, ये इस तरीके का साइबर अटैक हुंदा है कि जिस तुहाडा कोई क्रिटिकल डाटा जिवें समझ लो कि कैप्चर किया जा सकता है अटैकर्स बारे, तो वो क्या करते हैं, वो डाटा नूं लॉक कर देंगे है। लेट्स सपोज तुसी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुहाडी सारी प्रिपरेशन कंप्यूटर के थ्रू हुंदी है। लेट्स से कि तुसी फिजिकली पढ़ नहीं रहे हो, तुसी सारा समझ लो एक कंप्यूटर पे काम करके यू आर स्टडिंग, योर ऑल नोट्स आर देयर, योर बुक्स आर देयर, everything that you do is there in the laptop. Now let's say somebody attacks your computer and they lock your computer. तुसी आपदा सारा दा सारा डाटा एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तुसी कोई बैकअप नहीं रखा सी, तुहाडे कोल कुछ नहीं है ना, वो तुहाडे 5 साल दी लेट्स से प्रिपरेशन जिहड़ी है इस कंप्यूटर विच है, जिहड़ा कि लॉक्ड है बाय दी साइबर अटैकर्स, एंड दे आर आस्किंग यू फॉर सम काइंड ऑफ मनी और बिटकॉइंस। बिटकॉइंस दा आजकल बहुत फैशन है, दे आर आस्किंग यू बिटकॉइंस टू give you back the access to your data। ठीक है, वो तुहानू कहणगे कि सानू जी इन्ने बिटकॉइंस दो, then we will open the system for you। That is what is ransomware। तो रॉयल ransomware भी यही कर रहा है, यह critical sectors विच डाटा नू ब्लॉक कर दिंदा है या inaccessible कर दिंदा है, and then it asks the companies to pay bitcoins to get their data back। राइट, सो इसका नाम याद रखो, इनू एज एन एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं एंड क्वेश्चन च भी पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिवर्स कॉज्ड 70% ऑफ इंडियाज फ्लड्स बिटवीन 1985 टू 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा आर्टिकल है, क्वेश्चन दी पॉसिबिलिटी हैगी है। ज्योग्राफी के सैक्शनस विच क्लाइमेटोलॉजी नाल रिलेटेड ये टॉपिक है, स्पेशली अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पीपीएससी च तो ऑप्शनल नहीं हुंदा, चलो जो यूपीएससी लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चैनल नू सुन रहे हैं, तो उन्हां लई ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट। नॉर्मल जीएस च भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सब तो पहला देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या हुंदा है, राइट। जिवें रिवर आपां नूं पता है कि नॉर्मल लैंड ते रिवर क्या हुंदी है, फ्लोइंग वाटर, राइट, दैट इज रिवर। हुण अगर एयर च देखिए आपां तो बहुत सारे वाटर वेपर्स हुंदे ने, राइट। नाउ जदों ये वाटर वेपर्स इन्नी ज्यादा हो जान कि ये मिलके एक स्ट्रीम की तरह फ्लो कर रहे ने एयर दे विच, ला लो जिवें रिवर फ्लो करती है, तो इनू एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है, राइट। एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर वेपर मूविंग इन द स्काई लाइक अ रिवर फ्लोइंग ऑन द लैंड। ठीक है, वाटर वेपर्स जेड़े है उन्होंने स्ट्रीम बना ली है पूरी, लुकिंग लाइक अ वेपर्स दी रिवर, राइट। वाटर वेपर्स दी रिवर दी स्ट्रीम इज व्हाट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ठीक है, हुण आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि यही एटमॉस्फेरिक रिवर्स दे करके जिहड़ी मेजर फ्लडिंग हो रही है, राइट। तुसी देखो एटमॉस्फेरिक रिवर का क्या मतलब होया, बेसिकली अगर लेमैन दी टर्म च देखिए
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਵੇਪਰਸ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ that they will eventually fall। ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, then they sit on a condensation nuclei, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ they will sit and they will form a water droplet that will eventually fall over you, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 에ਅਰ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ because the world is warming, the climate is warming, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਈ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਵਰਸ, ठीक है। तो जिन्ने वाटर वेपर्स ज्यादा घूम रहे हैं दैट मीन्स उन्नी हाई पॉसिबिलिटी है हैवी रेनफॉल होने दी, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज द आर्टिकल सेज कि आप जिन्ने भी मेजॉरिटी डिवास्टेटिंग फ्लड्स देखे हैं बिटवीन 1985 टू 2020 मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एटमॉस्फेरिक रिवर्स, right। The river, the stream of water vapors running in the sky, right, that is responsible for the majority floods। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2013 ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ devastating ਉੱਤਰਾਖੰਡ flood ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, that was because of atmospheric river according to this study। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ 2018 ਚ flood ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, not just ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਾ, दोनों ही हाईली डिवास्टेटिंग सी। देखो उत्तों इन्ना बारिश हुंदी है एंड नीचे आपां अर्थ ते जी कंडीशंस बना रखिया होंदियां है, जिवें केरला दे विच डैम्स प्रॉपरली मैनेज नहीं सी इसलिए डिवास्टेटिंग फ्लड हो गए। उत्तराखंड दे विच ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो गया, बट उत्तों इन्नी बारिश आ किवें रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स, राइट। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 70% ऑफ इंडियाज मेजर फ्लड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 तक they can be linked to atmospheric rivers, right। in 7 अगर तुसी रेशियो वाइज देखना होवे 7 out of 10 floods that happened between this years was due to atmospheric rivers। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫਸ ਲॉस ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਲॉसेस ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ that we need to find out a way to fight to combat the phenomena, to address the phenomena of atmospheric rivers, otherwise ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। this is what a brief question is likely एटलीस्ट प्रीलिम्स च पूछा जा सकता है। तो तुसी ये कॉन्सैप्ट जिहड़ा है आपदे ध्यान च रखो एंड यू कैन यूज दिस इन योर एसे रादर। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सैप्ट स्टडी है, क्लाइमेट चेंज के एसे विच तुसी इहनूं यूज कर सकते हो हुण टू शोकेस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। लास्ट टॉपिक अज दा जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे मालदीव्स कोस्ट गार्ड हार्बर प्रोजेक्ट। इंडिया ने नवा प्रोजेक्ट मालदीव्स विच लॉन्च करन लई इनॉग्रेट किया है। सी आवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ इज देयर इन मालदीव्स एंड ही हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कोस्ट गार्ड एकता हार्बर, ठीक है। एकता ये यूनिटी वाली एकता ही है। एकता हार्बर नाम का ये प्रोजेक्ट जिहड़ा इत्थे लॉन्च किया है जिथे वी विल हेल्प मालदीव्स टू बिल्ड देयर स्ट्रोंगर कोस्ट गार्ड कैपेबिलिटीज, ठीक है। मालदीव्स जिहड़ी एक आइलैंड नेशन है, लेट्स जस्ट सी इट ऑन मैप फर्स्ट, राइट। एरिया मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, इंडिया का बहुत ही खास नेबर है, राइट। सो इंडिया कीप्स हेल्पिंग मालदीव्स इन बिल्डिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस, इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, डिफरेंट वेज च इंडिया जिहड़ा है मालदीव्स नूं असिस्ट करता रहंदा है, राइट। नाउ डिफरेंट वेज च असिस्ट क्यों करता है, वाई इज इंडिया इंटरस्टेड इन हेल्पिंग मालदीव्स, राइट। जिवें कि तुसीं ये पूरे मैप च ही देख सकते हो। इफ यू हैव एवर नोन द कॉन्सेप्ट ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, I hope you know the idea of sea lanes of communication। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि यह जी इंपोर्टेंट सी रूट्स जिथों वर्ल्ड का ट्रेड जिहड़ा है वह मूव करता है, वह पास करता है, राइट। जिवें कि मैं हुणे आ ड्रॉ किया है, दीज आर सम ऑफ दी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस रूट के थ्रू तुहाडा मेजॉरिटी वर्ल्ड ट्रेड जिहड़ा है मूव करता है,
राइट। सो यू सी ए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ते मालदीव्स इज प्लेस्ड एट अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, राइट। मालदीव्स दी पोजीशन देखो, ਇਹਦੇ हेड तो ही सारा ट्रेड होके मूव करता है, राइट। नाउ इफ some countries present in Maldives, they can monitor the movement of all the trade that is moving from here, from this choke point and from this choke point, right। choke point 1, choke point 2, you will tell me the name of these choke points। अगर तुसी IR थोड़ा बहुत पढ़िया है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ choke points ਦਾ concept, SLOC ਦਾ concept भी पता होना चाहिए। just tell me what is choke point 1, the name of choke point 1 and the name of choke point 2, राइट। सो अगर कोई कंट्री मालदीव्स नाल कोलैबोरेट करके इस जगह ते एस्टैब्लिश हो जाती है, दे कैन वेरी वेल मॉनिटर the trade that is flowing from these strategic choke points, right। that is why Maldives is very very important for all the countries who want to ensure their interest in the Indian Ocean region। इसीलिए चाइना भी मालदीव्स च बहुत इंटरेस्टेड रहता है because it has a strategic location, and India is also very much interested in Maldives, and that is why we keep cooperating with them। one such latest project is this Ekta Harbour, ठीक है। याद रखना है, आंसर्स मेंशन कर सकते हैं और पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स च सीधा क्वेश्चन कि एकता हार्बर प्रोजेक्ट इंडिया ने किस कंट्री विच लॉन्च किया है, राइट। इस तो इलावा भी पास्ट विच इंडिया ने काफी सारे कोऑपरेशन वाले मेजर्स मालदीव्स नाल लिते हैं। वी हैव गिवन देम लैंडिंग एयरक्राफ्ट, MNDF लैंडिंग एयरक्राफ्ट असी उन्हां नूं दिता है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ट्रांसफर किते ने। पेट्रोल वैसल्स जिहड़े पानी विच तुसीं जिवें कह सकदे हो पुलिस अपनी रेकी करती रहती है या राउंड्स ते घूमती रहती है रोड्स ते, उस तरीके नाल पानी विच पेट्रोल करन वाले वैसल्स, ठीक है। पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है लैंड ते, इसे तरीके नाल सी विच भी पेट्रोलिंग होंदी रहती है टू सी वही सिक्योरिटी नू मेनटेन करन लई। सेम जो पुलिस करती है वही ओशियंस च या वाटर बॉडीज च हुंदा है, राइट। उस तो बाद कोस्टल रडार सिस्टम भी असी मालदीव्स नू दिता है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले, दैट इज व्हाट इज रिटन हेयर, राइट। देन असी उन्हां नू व्हीकल्स, नेवल बोट्स, इस तरीके दे भी काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कीती हैं ते असी सिर्फ इक्विपमेंट्स ही नहीं उन्हां नू ट्रांसफर करदे, वी आर आल्सो हेल्पिंग देम बिल्ड देयर कैपेसिटी। उन्हां दी नेवल फोर्सेस दी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। डिफेंस ट्रेड उन्हां नू यू नो इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक टर्म्स च भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डिफेंस दे सेक्टर विच, राइट। एंड ते हुण असी रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया है। दैट मीनस दैट साइबर सिक्योरिटी दे सेक्टर विच अगेन कोलैबोरेट करन लई दोनों नेशंस जिहड़े है कोऑपरेट करनगियां, राइट। सो इस तरीके दे बहुत सारे स्टेप्स डिफेंस सेक्टर विच असी लिते ने। सो जस्ट डिफेंस सेक्टर की कोऑपरेशन ही नहीं है, तुसी देखो इकोनॉमिक लेवल ते भी वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट विद देम इन डिफरेंट वेज। सब तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया दा मालदीव्स च चल रहा है दैट इज ग्रेटर माले कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट, राइट। मालदीव्स जिहड़ा है वो बहुत सारे आइलैंड्स का बनिया होया है, तुसी ऐ कह सकते हो। इस तरीके नाल काफी सारे आइलैंड्स मिलके मालदीव्स बनाते हैं। हुण इन्हां आइलैंड्स दे विच कनैक्टिविटी भी चाहिए है। सो वन सच प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन बाय इंडिया, वन सच कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन बाय इंडिया नोन एज ग्रेटर माले कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट। 2022 विच असी ये लॉन्च किया सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, right। and India is present in a greater way with this project in Maldives। साडी दोस्ती मालदीव्स नाल होर strengthen होएगी। we will be able to ensure our interest at this strategic location, right। so that is why Maldives साडे लई significant क्यों है? because it is located at a strategic location, right। जिन्नी भी ट्रेड है वो इस एरिया चो मूव करता है and we want to be able to monitor the movement of all the ships that are going from this area, and that is why this country is very important। इसलिए असी इन्हां नाल अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। also इंडिया दी अगर तुसी
extended exclusive zone देखो, economic zone देखो, that also comes very near to Maldives. ਅਸੀਂ अगर कुछ भी अपने resources access करने हैं, we might need the help of Maldives, इसीलिए right। ਹੋਰ क्या ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੰਬਨ ਤੋਤਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਵਾਦਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਮਾਲਦੀਵਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਬੇਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦੀਵਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, right? So to counter the Chinese investments, to counter the Chinese military plans, we need to be connected with Maldives, right? Also ਫਿਰ maritime security ਲਈ, terrorism ਨੂੰ control ਕਰਨ ਲਈ, piracy ਨੂੰ control ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਏਰੀਆ ਫਰਮ ਵਿਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਮੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ओशियंस 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣ, ਦੇ ਮੂਵ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ। ठीक है, क्योंकि ओशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਓਪਨ ਓਸ਼ੀਅਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਓਸ਼ੀਅਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਮੂਵ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੋਸਟਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੱਚ ਕੰਟਰੀ that is very important, ਜਿਹਦੇ very close by these ships are moving। ਤਾਂ ਇसीलिए ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ and for watching the sea lanes of communication, Maldives ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। that is why India is focusing on that। ठीक है। ਇਹਨਾਂ 10 reasons 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲਦੀਵਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ देयर आर many Indians who are employed in the tourism sector in Maldives। that is why also Maldives is important for us। ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਦੀਵਸ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫॉर all these reasons Maldives is significant for India। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ strategic location। that is why we are trying to collaborate with them in a enthusiastic fashion। ਇसीलिए ये various projects ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ undertake ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, right। make notes of all these points that are given in this write up ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ answers 'ਚ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। that is all for today's discussion। thank you so much for watching।